تو اس لیے میرے بھائیوں زکات ایک ایسی چیز ہے جو لوگ آج انکار کر بیٹھے ہوئے، عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، اور زکات کو اگر کیا ایک ٹیکس کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سال سال کیسا نکالنا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ سے لے کر ہمیں پال رہے ہیں، اور مال آنے کا ذریعہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، رزق کا ذریعہ بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، جب اس کا دیا ہوا مال اگر ہمیں خرچ کرنے کے لیے بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو پھر اپنے ایمان میں ذرا جھانک کر دیکھو، زکات کا انکار کرنے والا، زکات کو آ کر کے ٹھکرانے والا، زکات کو نہیں ماننے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس وقت بہت سارے مسلمان پریشان ہیں، لیکن پریشانی کے باوجود بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کو آ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر بھی اس کا مال گھپلا کر دیا جائے گا، ڈاکو کے ذریعے سے چرا دیا جائے گا، یا کسی ایسے جگہ پر لگا دیا جائے گا جہاں پر انسان لگانا نہیں چاہتا، اور ایسا پریشان ہو کر اپنا سارا مال تباہ و برباد خود انسان کر لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خطرناک ایک تو آخر ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون، ایمان والے متقی لوگ کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرنے والے اور زکات کو ادا کرنے والے، اور وہ زکات اس مال میں سے ادا کرتے ہیں جس کو ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرمایا کہ انسان اپنے کمال سے کما لیا، اپنے ٹیکنک سے کما لیا، اپنی ہوشیاری سے کما لیا۔ بھئی اگر کسٹمر کے دل کے اندر اللہ بات نہ ڈالتے تو تمہاری دکان پر کون آ کر تجارت کرے گا؟ کسٹمر کے دل میں اگر اللہ بات نہ ڈالتے تمہارے پاس اگر کون بزنس کرے گا، کون ویپار کرے گا؟ تو یہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رمضان کی اہمیت، رمضان میں روزہ رکھنے کی وعید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مستحق لوگوں کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ اپنی زندگی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے روزے چھوڑ دینے سے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جو لوگ اپنے پورے سال کو عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو رمضان کے پورے روزے رکھ کے رمضان کی پوری قدردانی کریں گے تو پورا سال عافیت کے ساتھ گزاریں گے۔ عمومی طور پر رمضان المبارک کے اندر بہت ساری فضیلتیں عبادت کی، مال خرچ کرنے کی بیان کی جاتی ہے، نفل عبادت کرنے سے فرض کے برابر، اسی طرح 1 روپیہ خرچ کرنے پر 70 روپیہ خرچ کرنے کے برابر، یہ عمومی طور پر رمضان میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنا جان اور اپنا مال اللہ کے لیے لٹا دے، اس لیے کہ جان بھی ہماری نہیں اور مال بھی ہمارا نہیں، جان بھی اللہ نے دی ہے اور مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو اسی لیے اس جمعہ آپ کے سامنے وہ لوگ جن کے پاس مال ہے، جائیدادیں ہیں، پلاٹیں ہیں، دکانداری ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، مال کے زیورات ہے، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ زکات کو فرض فرمائے، اور زکات اسلامی شعائر میں، اسلامی فرائض میں ایک فرض ہے، اور زکات کا انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت سارے نو مسلم لوگ تھے جو شروع میں اسلام تو قبول کیے لیکن اسلام ابھی یہاں تک نہیں پہنچا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ زکات دینے سے انکار کر دیا، زکات کا انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ایسی حالت میں جب اللہ کے نبی یعنی انتقال فرمائے ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غصے میں تھے، ایک طرف تو اپنے دوست کے انتقال کا غم، دوسری طرف جس دوست نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ذمہ داری دی صحابہ کرام کو، تو اس میں سے ایک فریضہ ہے زکات، اس کا انکار کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی ممبر پر کھڑے ہو کر برملا اعلان کیا کہ اگر اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جو کوئی زکات دیتا تھا اور زکات میں بکریاں دیتا تھا اور بکریوں کے گلے کے اندر جو رسی ہوتی تھی وہ رسی لا کر دیتا تھا، آج اگر وہ رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو ابوبکر کی تلوار اس پر چلے گی، چاہے میرے دوست ساتھ دے یا نہ دے، صحابہ میرا ساتھ دے یا نہ دے، اکیلا ابوبکر اس کے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور سب سے زیادہ فکر مند ہوئے، سب سے زیادہ غمزدہ ہوئے حضرت ابوبکر۔ اس کے باوجود بھی اگر اسلام کی ایک فرضیت کا انکار کر رہے تھے لوگ تو اس کے واسطے آخر کیا ہے؟ غم کو بازو رکھے، لیکن فرضیت کو انکار کرنے والے کے لیے اعلان کر دیے اگر کوئی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اللہ کے نبی کے زمانے میں جو دیتا تھا، آج ابوبکر اس سے لڑے گا۔ تو صحابہ بڑے تعجب ہو گئے کہ ایسی حالت میں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو پر برداشت کرتے ہوئے اسلام پر آنچ آنے نہیں دیا،
जब सहाबा संभल गए, इसीलिए कहते हैं हज़रत अबू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज करते हैं, 2 दिन मुझे दे दीजिए, एक दिन जो गारे दो सवाब मुझे दे दीजिए, एक सवाब जो गारे सूर के अंदर आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के मौके पर जो आपने संभाला है, आपने जो साथ दिया है, उसका सवाब, और एक वो दिन जिसमें हम लोगों के दिल बिल्कुल मायूस, बिल्कुल गमज़दा थे, ऐसे वक्त में लोग ज़कात से इनकार कर रहे थे, आप खड़े होकर बरबला ऐलान फरमाए, खड़े होकर क्या उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। वाक़ईतन ये उस दिन इतना बड़ा आपको सवाब मिला होगा, वो सवाब मुझे अता फरमा दीजिए, मेरी जिंदगी के सारा सवाब आप ले लीजिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात एक ऐसी चीज है जो लोग आज इनकार कर बैठे हैं, अमली तौर पर इनकार कर रहे हैं, और ज़कात को अगर क्या एक टैक्स के तौर पर समझा जाता है कि भाई साल साल कैसा निकालना चाहिए, जब अल्लाह तबारक व तआला मां के पेट से लेकर हमें पाल रहे हैं, और माल आने का जरिया भी अल्लाह ही ने बनाया है, रिस्क का जरिया भी अल्लाह ही ने बनाया है, जब उसका दिया हुआ माल अगर हमें खर्च करने के लिए बोझ महसूस हो रहा है, तो फिर अपने ईमान में जरा झांक कर देखो, ज़कात का इनकार करने वाला, ज़कात को आकर के ठुकराने वाला, ज़कात को नहीं मानने वाला, वो मुसलमान नहीं रहता, वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि ये रमजान मुबारक का महीना है, और इस वक्त बहुत सारे मुसलमान परेशान हैं, लेकिन परेशानी के बावजूद भी जो अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ है उसको आकर के अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बड़ा फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद आकर के माल की हिफाजत फरमाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिस माल पर ज़कात अदा कर दी जाती है वो माल अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, जिस माल पर ज़कात अदा कर दी जाती है वो माल का मैल निकल जाता है और बाकिया माल अल्लाह ताला का हो जाता है, और वो माल की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाते हैं। और जिसने माल की आकर क्या है ज़कात नहीं निकाली, तो ऐसे आदमी के लिए दुनिया के अंदर भी वाइदे हैं और आखिरत के अंदर भी वाइदे हैं। दुनिया के अंदर भी उसका माल घपला कर दिया जाएगा, डाकू के जरिए से यानी चुरा दिया जाएगा, या किसी ऐसे जगह पर लगा दिया जाएगा जहां पर इंसान लगाना नहीं चाहता, और ऐसा परेशान होकर अपना सारा माल तबाह बर्बाद खुद इंसान कर लेगा। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बड़ी खतरनाक, एक तो आकर ईमान वालों की सिफत बयान कर रहे हैं, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व युअतूना ज़काता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले मुत्तकी लोग कौन हैं? जो नमाज को कायम करने वाले और ज़कात को अदा करने वाले, और वो ज़कात उस माल में से अदा करते हैं जिसको हमने दिया है, हमने दिया है। अल्लाह ये नहीं फरमाए कि इंसान अपने कमाल से कमा लिया, अपने टेक्निक से कमा लिया, अपनी होशियारी से कमा लिया। भाई अगर कस्टमर के दिल के अंदर अल्लाह बात ना डालते तो तुम्हारी दुकान पर कौन आकर तिजारत करेगा? कस्टमर के दिल में अगर अल्लाह बात ना डालते तुम्हारे पास अगर कौन बिजनेस करेगा, कौन व्यापार करेगा? तो ये सारा निजाम अल्लाह का है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, कि दुनिया के अंदर जितने चौपाए हैं, जितने जानदार हैं, उन सब की रिस्क की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने रखी है। मेरे जिम्मे है सारा का रिस्क। जब अल्लाह दे रहा है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कि देखो मेरे हुक्म के मुताबिक तुम अपने माल मौल से ज्यादा नहीं चाहते हैं, 100 में से 50% दे डालो, 100 में से 10% दे डालो, 100 में से 40% दे डालो, ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं। पिछले जमाने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 100 रुपए कमाता है, मिसाल के तौर पर 50 रुपए अल्लाह के राह में देना पड़ेगा, ज़कात निकालना पड़ता था, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान किया कि 100 रुपए जो कमाता है उसके लिए 2.5 अढ़ी रुपए देने का हुक्म फरमाया है। ये अढ़ी रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। 1000 रुपए कमाता है 25 रुपए देने का हुक्म फरमाया है, लाख रुपए कमाता है 2500 रुपए लाख के ऊपर देने का हुक्म फरमा रहे। तो इसीलिए ज़कात अदा करते हुए खुश दिली के साथ अदा करना चाहिए, उसमें बुखल नहीं करना चाहिए, बखीलपन नहीं करना चाहिए। बखीलपन करोगे, चिड़चिड़ाहट कर दोगे, तो फिर अल्लाह की वईद भी सुन लीजिए, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़-ज़हबा वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। हमारे इलाके की बहुत बड़ी बुरी चीज क्या है? जमा के रखना है, जमा के। वो जमा हुआ माल अगर उसका हक अदा करे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माल महफूज रहता है। जमा हुआ माल अगर उसका हक अदा नहीं किया जाए तो जितना भी जमा हो गए उतना अल्लाह निकाल भी लेंगे। जो अल्लाह दिए हैं वो अल्लाह निकाल भी लेते हैं। सुने होंगे आप, एक आदमी को ऐसी बीमारी लाहिक हो गई, और ऐसी बीमारी लाहिक हो गई कि जिसकी वजह से कई जायदाद जमा करके रखा था, जमा करके रखा था, और उसके लिए जालिमों को अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया, डॉक्टरों को मुसल्लत कर दिया। और ऐसे डॉक्टर उसके पास ऐसी उसकी बीमारी की इलाज के लिए इतना पैसा मांगे, सारी जायदाद को लपेट कर उसने आकर क्या बिकवा दिया। मजबूरी के हालत पर लोग उसकी जायदाद को कम कीमत पर खरीदने के लिए सामने आए, सारी जायदाद बेच बिचाकर उसने सारा हॉस्पिटल पर डालकर आगे उसने और 15-20 लाख का मकरूज हो गया।
تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات. ہاں اس کے خلاف اگر وہ جمع کرنے سے پہلے کہ بھئی اللہ نے اس کو دیا ہے, اللہ کا حق اس میں سے ادا کیا جائے, اللہ کا حکم اس کے اندر سے ادا کیا جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط نہیں فرمائیں گے. اسی لیے جس قوم کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی اس قوم میں بارشیں اللہ روک لیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو قوم اللہ کی دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں, یعنی رزق کی تنگی آ جاتی ہے. ہمارا رزق سارا رزق بارشوں کے ذریعے سے ہے, بارش نہیں ہے رزق کی تنگی آ جاتی ہے, فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور زمینیں آ کر بالکل خالی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اور اسی طریقے سے ایک اور اسی حدیث کے اندر فرمایا گیا جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی وہ قوم کے اوپر طرح طرح کے بیماریاں مسلط ہو جاتی, طرح طرح کے بیماریاں. جو قوم بخیل پن کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے اگر زکوٰۃ نہیں نکال پاتی طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے کو جمع کرتے ہیں, چاندی کو جمع کرتے ہیں اور ولا ينفقونها في سبيل الله, اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب أليم, ان کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. کیا درد دینے والا عذاب؟ حدیث پاک کے اندر دو طرح کے عذاب, قرآن میں ایک عذاب ہے, حدیث کے اندر بھی ایک اور عذاب ان کو بتایا گیا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم. سونا اور چاندی جب آگ میں ڈالی جاتی ہے وہ پگھلتا ہے, پگھل کر پانی کی طرح بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ دنیا کے اندر سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اسے پگھلائیں گے اور ایک ایک سونے کی تختی بنا دی جائے گی. مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 گرام سونا, 2 گرام سونا, 10 گرام سونا یا 15 گرام سونا مثال کے طور پر کسی کے پاس ہے, اور وہ 15 گرام سونا ایک چٹیل میدان کی طرح تختی بنا دی جائے گی, ایک میدان کی طرح. اتنا سونا پگھلا کر خالی ہاتھ پر ڈال کر دیکھ لو, معلوم ہوتا انگار میں پگھلا کر ہاتھ میں ڈالو تو اس کی گرماہٹ کو آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ اگر کوئی بندہ سونا رکھا ہے, چاندی رکھا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے, وہی سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جلائیں گے. کیسے؟ اتنا سونا دیکھو اتنا بڑا ہو جاتا, بہت بڑا ہو جاتا, ایک چٹیل میدان بڑھتا, ایک صاف میدان جیسا ہوتا ویسا, تو اسے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سلگائیں گے, اسے پگھلائیں گے. کہاں داغیں گے؟ فتقوی بہا جباہہم وجلودہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں ڈالا جائے گا, اس سے دیتے تھے زور, یہ روک لیا, یہاں ڈالیں گے. پھر اس کے بعد کون تو بھی زکوٰۃ پوچھنے کے لیے آیا, یہ پیشانیوں پر جھلیاں یہاں آتے, کئی کو بھائی میرا مال میری مرضی, تو کون ہوتا بولنے واسطے. تو اس طرح اگر یہاں پر ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد پیٹ پر, یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے آدمی پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے, تو پھر اس کے آخر کیا ہے, یہاں پر یہ داغا جائے گا. ایک حدیث کے اندر آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی کل قیامت کے اس کے مال کو اللہ ایک اژدھا بنا دیں گے, اژدھا بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے, اور وہ اژدھا کیا کرے گا, یہاں سے کاٹنا شروع کرے گا, یہ جبڑے اتنا زہریلا اژدھا ہوگا, اس کے دو کالے نقطے یہاں پر ہوں گے, نیلی آنکھیں والے ہوگا اژدھا ہو, اور کاٹتے ہوئے وہ کہے گا, چباتے ہوئے چیرتے ہوئے وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا مال ہوں, جس مال کو جھوٹ بول کر کمایا تھا, دھوکہ دے کر کمایا تھا, یا اگر حلال طریقے سے بھی کمایا لیکن مال کا حق ادا نہیں کیا, جمع کر کے رکھا تھا, وہی سام وہی اژدھا اس کو ڈسے گا اور یہاں پر کھا کر یہ پورا ختم کر دے گا, پھر اس کا چہرہ صحیح ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسان یعنی جان سے محبت کرتا ہے, جان کے بعد مال سے محبت کرتا ہے, انسان جان سے جتنا محبت کرتا ہے اور جان کے بعد سب سے زیادہ مال سے محبت ہوتی ہے, تو اس لیے اس مال کی محبت کو اللہ دل سے نکالنے کے لیے کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ اللہ کے نام پر خرچ کرو, مال سیف رہے گا. اسی لیے بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں, ایک اہل حدیث والے لوگ ہیں, اتنے کمبخت لوگ ہیں یہ لوگ, عورتوں کے زیورات ہے نا, عورتوں کے زیورات جو پہنتے نا, وہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں کرو بولتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں تھیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, چاندی کی انگوٹھیاں دیکھ کر پوچھنے لگے عائشہ یہ کیا ہے یا رسول اللہ, یہ آپ کے لیے میں خریدی ہوں اور جب آپ آئیں گے میں سنورنے کے لیے یہ استعمال کر رہی ہوں. ہمارے یہاں تو
औरतां चांदी नहीं, मर्द बाने आकर सबसे ज्यादा जेवरा पहनना शुरू कर डाले। मर्द बाने हैं कि लड़कियां हैं कि समझ में नहीं आती बात। हाथ में आकर के चेन देते, गले में चेन, 3-4 अंगूठियां, हराम है, नाजायज है। क्या चांदी बोले तो पहनने की इजाजत इस्लाम देता है? खाली 3.5 ग्राम 4 ग्राम चांदी उतना पहन सकते हो। हाथों में बंगड़ियां पहने सरकार, चैना डाल लेना नहीं, ब्रासलेट के जैसा, गले में चैन, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसको भी अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन लाएंगे तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है अब चांदी महंगी हो गई है, वरना बच्चे से लेकर बड़े से लेकर हाथ में कड़े डालने का कहते हैं, हाथ में चैना डालने का, गले में आकर चैना डालने का, फिर पट्टियां भी डालो पैर में, अच्छा रहता। वो 21 बाकी रह गया, पट्टियां नहीं पो में टच, सो भाई अंगलिया में, गले में, बाजने, कन्ने यहां भी डाल लेते, अब पट्टियां बाकी रह गई। एक हाथ में 2 पट्टियां डाल लो बराबर, लड़की है कि लड़का है कि मालूम होना नहीं। तो इसलिए जिन लोगों का फैशन ये बन गया है, अल्लाह से तौबा करके निकाल लें, वरना यही चीजें अल्लाह तबारक व तआला तपाएंगे कल क़यामत के दिन। तो ये फैशन बनकर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं, ये आपको दिखाने के लिए, सवरने के लिए, आपको खुश करने के लिए मैंने ज़ेवरात पहनी है। इसलिए औरत को चाहिए अपने शौहर को खुश करने के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करे, घर के अंदर, शादी बहलों में नहीं, बाहर निकलते हुए नहीं, बल्कि घर के अंदर अपने शौहर को खुश करने के लिए सवरने की इजाजत ही नहीं है, बल्कि अफजल बताता है इस्लाम कि अपने शौहर को सवार कर दिखाओ। और इसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि अपनी औरतों को सवार कर दिखाना चाहिए। इन्हें एड्डा मैले कपड़े पहले को, गंदा हो को औरत के पास गया बोले तो क्या बोले ना, जैसा औरत को सवरने का हुक्म दिया है, मर्दों को भी आकर क्या है, अच्छा खूबसूरत रहने का हुक्म दिया है। इसलिए आज अगर ये जो गलत ताल्लुकात चलते हैं ना, ये इसी वजह से हो रहा है। या तो इन्हें एड्डी मेड्डी रहती है, या एड्डा मड्डा रहता है, जिसकी वजह से औरत का दिल ना शौहर की तरफ माइल होता है, ना शौहर का दिल औरत की तरफ माइल होता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आपको खुश करने के लिए मैंने ज़ेवरात पहनी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कात निकालियो। तो हज़रत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहीं निकाली। तो फिर ये अंगूठियां तेरे जहन्नम के लिए काफी। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ, जिन अंगूठियों को पहनकर हज़रत आयशा अल्लाह के नबी को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए पहनी, उस पर भी अगर ज़कात नहीं निकाली गई तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये जहन्नम के लिए काफी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी खाला के साथ अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई। हज़रत अस्मा अल्लाह के नबी की साली है, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई। हाथ में सोने का कंगन था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने के कंगन को छड़ी से हलाया और फरमाया कि अगर इसकी तुम ज़कात निकालती हो तो ठीक है, अगर इसकी ज़कात नहीं निकालती है तो ये अंगार के कंगन बन जाएंगे कल क़यामत के दिन। तो इससे पता चला कि औरतों के जेवरों में आकर ज़कात मौजूद है। जो औरत चाहे वो इस्तेमाल करती है, वो नहीं करती है, वो उठाकर रख डालती है, कुछ भी नहीं, औरत के पास जेवर रहा, चाहे चांदी का जेवर हो, चाहे सोने का जेवर हो, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, चाहे खुद औरत निकाले। अगर औरत नहीं निकाल सकती तो मर्द निकालने की भी इजाजत है कि औरत की तरफ से ज़कात अदा करे, तो वो ज़कात अदा भी हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, पड़ोसी मुल्क के अंदर एक ऐसा ही वाकया आया। आमतौर पर मर्दों को माल मोहब्बत है, जायदाद से मर्द मोहब्बत करता है, पैसों से मर्द मोहब्बत करता है, और इसी तरह प्रॉपर्टी से मर्द मोहब्बत करता है। लेकिन औरत सबसे ज्यादा सोने से मोहब्बत करती है, जेवरात से मोहब्बत करती है। जब वो ऐसी मोहब्बत में आ जाती है तो कितना भी जेवरात तुम लेकर उसे पहनाए, ऊपर से लेकर नीचे तक जेवरात पहना दे, वो कहे कि और एक जेवर होना चाहिए। ये बसाता नहीं है साहब। तो औरत के इस्तेमाल करने के जेवरात में भी ज़कात वाजिब है। ये लोगों का इस्लाम आकर क्या है, ये करता कि वहां आड़ा डाले से हदीस वाले भाई औरतों की इसमें ज़कात नहीं है। तो फिर ये हदीस कौन बोली फिर? हज़रत आयशा को अल्लाह के नबी ने धमकी दी है, हज़रत क्या है अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी ने धमकी दी है, यहां तक कि खुद की बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक मर्तबा उनके पास सोने का हार था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए हज़रत फातिमा रज़ी, दो औरतें सहाबिया औरत आती, तो उनके हाथों में भी सोने के ज़ेवरात होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह जब हाथ में सोने के ज़ेवरात देखते तो यानी तंबीह फरमाते थे कि इस पर ज़कात अदा की तो ठीक है, नहीं अदा की तो फिर जहन्नम के लिए आकर खुशखबरी सुनाते थे। तो इस तरह छड़ी से मारे। तो ये दोनों हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए कि भाई हमारे हाथ में ज़ेवरात थे, अल्लाह के नबी ने आकर इस तरह फरमाया। तो हज़रत फातिमा के पास भी एक जेवर था, एक हार था, जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिफ्ट में दिया था, हदिये के तौर पर दिया था। तो उस वक्त अल्लाह के नबी घर में दाखिल हुए तो उनके पास सोने का हार था। अल्लाह के नबी ने देखा, देखते ही आपके चेहरे अंदर का रंग बदल गया। हज़रत फातिमा समझ गई ये क्या कि दाल में काला है, अल्लाह मेरे हाथ में सोने का हार देकर अल्लाह के नबी की चेहरे में नाराजगी जाहिर हो रही। फौरन बाजार को भिजवाया, बिकाया, एक गुलाम खरीदा, उसको आजाद कर दिया।
फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हज़रत फातिमा के हाथ में जो जेवर था वो बिका दिया गया और उसके बदले में गुलाम खरीद कर आजाद कर दिया गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी बेटी जहन्नम के आग से छुटकारा पा चुकी है। इससे अंदाजा लगाओ, जेवर रखना कमाल की बात है, उस पर ज़कात निकालना है। ज़कात नहीं निकालेंगे तो उसका वही जेवर जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। इतनी बड़ी वईद को ये अहले हदीस वालों के दिमाग कहां चला गया? क्यों ये लोग जेवरात पर आकर के ज़कात नहीं बोल रहे हैं? पता चला कि ये लोग इस्लाम के दोस्त नहीं है बल्कि इस्लाम के दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के दुश्मन है ये लोग। तो पड़ोसी मुल्क में एक औरत रही जिसको अगर बिल्कुल जेवरात की बड़ी ख्वाहिश थी, इतने जेवर पेजी रखी हुई थी, निकालना तक गवारा नहीं करती थी। हाथा में यानी गले में, काना में, ये सब अगर जेवर पहनी हुई, जो जेवर पहन कर अगर लग जाता है तो जिस्म के साथ चिपक जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी बाज अंगूठियां, बाज चीजें आकर क्या है ऐसी थी जो जिस्म से चिपकी हुई थी। उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। अब मौत आते ही सबसे पहले पहले निकाल लेना ये करो। वो जमाने में शायद मशीना नहीं थे, मशीना हो बोले तो काट काट कर निकालते थे। तो वो जमाने में मशीना गिशीना कुछ नहीं। और अगर इसी तरह इंतकाल हो गई, जेवर निकालना चाहे तो निकल नहीं पा रहा है, जिस्म से चिपका हुआ है। अब उलमा से मशवरा किया गया कैसे करना है, जेवरात के साथ उसे दफन कर दो। दफन करके आ गए। रोजाना बेटा जाता था इसाले सवाब करने के लिए। तो एक दिन कब्र के अंदर से चीख और पुकार की आवाज, ऐसी चीख, घबरा गया। बेटे ने कब्र खोद कर देखा तो मां के जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है बल्कि वो जेवरात हैं। वो जेवरात जैसे आग में डालने के बाद चमकते हैं, उसकी चमकाहट होती है, वो चमक रहे हैं और उसके अंदर से धुआं आ रहा है और उसकी वजह से वो चीख पुकार की आवाज। देखते ही कब्र बंद कर दिया। रोता हुआ मोहल्ले वालों को आकर बताया कि इस तरह मेरी मां ने कभी आकर क्या ज़कात नहीं निकाली। जेवरों की बड़ी लालची थी, जेवर पहना करती थी लेकिन कभी ज़कात नहीं निकाली। मैंने अपने आंखों से देखकर आया अल्लाह का अजाब। तो इसलिए मेरे भाइयों, प्लाटें खरीदे हैं बेचने के लिए, तिजारत के लिए, आज की कीमत जितनी है उसके ऊपर ज़कात। और इसी तरीके से दुकान है, आप अगर तिजारत कर रहे हैं, जब ज़कात निकालते हैं सारा माल का हिसाब करके कितनी ज़कात निकलती है उसका ज़कात जरूर निकालना चाहिए। और इसी तरह बैंक में आकर क्या है, ये इसीलिए बनाया गया ताकि हम लोग ज़कात अदा करने में यानी बहाने ना बनाएं। जो बंदा ज़कात अदा करता है अल्लाह भी उससे खुश होते हैं, उसका माल भी सेफ होता है और उसकी आकर क्या है जितनी चीजें हैं अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करते हैं। किसी डॉक्टर की उसकी नजर नहीं पड़ती, किसी वकील की नजर नहीं पड़ती, किसी आकर क्या है चोर की नजर नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह खुद उस माल की हिफाजत करते रहते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि साल में एक मरतबा अल्लाह को 2.5%, 40% नहीं 2.5% अल्लाह के राह में अपनी बीवी के पास ज़ेवरात हों। अब तो कीमत अगर 25 तारीख के हिसाब से चांदी का 1 ग्राम 280 रुपए है और 612 ग्राम चांदी 1,70,000 पर 1,460 एक निसाब शरीयत ने मुतय्यन किया। और सोने का निसाब क्या है, 80 पर 7 ग्राम 480 मिलीग्राम इतना गोल्ड होना चाहिए। और 1 ग्राम की कीमत 14,500। 25 तारीख को 1 ग्राम की कीमत थी 14,500। गुज़िश्ता साल तकरीबन 80,000 90,000 के दरमियान में था सोना। एक साल जंप हुआ तो अंदाजा लगा उसका डबल हो गया। तो अब डबल हो गया, अल्लाह से नहीं बढ़ा सो, अब उसे उसके लिए देना है नहीं। अब तुम्हारी 80,000 की कीमत थी, 90,000 की कीमत थी, तब भी तुम्हारे पास सोना था। जब 1,40,000 पर 5,000 हो गया सोना, तब भी तुम्हारे पास सोना है। कीमत बढ़ी है, आपके सोने की वैल्यूएशन ज्यादा हुई है। सिल्वर तो कांगिस था, अब देखो 50,000 60,000 में अगर 1 किलो सिल्वर आ जाता था, लेकिन अब 1,70,000 पर 1,000 हो गया। तो अब देखिए, जिसके पास 1,70,000 पर 1,000 का सोना है, साथ में थोड़ा सा कैश है या चांदी की पट्टियां आएंगी पवा में डालते से मट्टे गिट्टे या क्या भी हो, अगर किसी के पास 1,70,000 पर 1,000 का सोना है, साथ में थोड़ा सा क्या तो भी चांदी है या पैसा है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, उन्हें कंपलसरी ज़कात देना है। तो इसीलिए रमजान मुबारक का बेहतरीन मौका है। 1 का 70 बोलते हैं, रमजान के अंदर तुम ज़कात निकालो। हिसाब अगर ये कैलेंडर नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हिसाब नहीं आता,
उर्दू तारीख, अरबी तारीख, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़अदा, ज़िलहिज्जा, जिसकी शादी किस महीने में हुई है, जनवरी में हुई हजरत, नहीं, जनवरी में कौन सा अरबी महीना हुआ, देखो वो हिसाब से आकर ज़कात निकालना पड़ेगा। रबीउल अव्वल में किसी की शादी हुई, मुहर्रम में किसी की शादी हुई, सफर में किसी की शादी हुई, तो मुहर्रम तो मुहर्रम एक साल शुमार किया जाएगा। तो इसकी बीवी के पास जो जेवरात होते हैं, अगर उसने पहले से निकाल लिया, रमजान में निकाल लिया, रमजान से रमजान हिसाब रख लिया, तो फिर वैसा ही कंटिन्यू करना पड़ेगा उसे। तो इसलिए मैं, वक्त तो बिल्कुल करीब है, सरसरी तौर पर आपको पढ़कर सुना देता हूं। गोल्ड, सोना, 1 ईयर कंप्लीट हुआ हो, यानी मिसाल के तौर पर तुम्हारी बीवी के पास जेवर आकर गुज़श्ता साल रमजान या शाबान में जेवर आ गया है, यानी गोल्ड आ गया है, अब 1 साल उसके ऊपर गुजर गया। और इसी तरीके से चांदी, चांदी की पट्टियां तो आप तो आधा किलो पहनते हैं ना, पट्टियां, वो भी हिसाब लगाना पड़ेगा। अगर सोना है साथ में चांदी भी है, वो भी सोने के साथ जोड़ना पड़ेगा। तीसरा, कैश ऑन होल्ड, तीसरा देखिए, आपके पास कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा है, आपके पास हाथ में कितना पैसा है, ये भी उस वक्त उस ज़कात में डालना पड़ेगा। देखो एक और बात वाज़ेह कर दूं, तुम्हारी तिजारत अलग है, तुम्हारे बीवी के पास सोना अलग है, तुम्हारी तिजारत की ज़कात अलग अदा करनी पड़ेगी, बीवी की ज़कात बीवी अदा करनी पड़ेगी। हाँ, बीवी ने इजाजत दी कि भाई मेरी माल की ज़कात तुम ही निकाल डालो, बोले तो अदा हो जाती। लेकिन बाज लोग बड़ा बहाना बनाते, मेरे पास आको पूछते, हजरत सोना है, चांदी है हजरत, लेकिन खर्च भी है मेरे ऊपर। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, तुम्हारी तिजारत पर खर्च है या तुम्हारी बीवी के जेवरात पर खर्च है, या तुम्हारी बीवी पर खर्च है? बीवी पर नहीं हजरत, मैं निकालता थी ज़कात, मेरे पर खर्च है। तू निकाला तो ज़कात तेरी बीवी की तू निकाल रहा है, तेरे ऊपर खर्च है, बीवी के ऊपर तो नहीं ना खर्च, बीवी के ऊपर तो नहीं ना खर्च, तेरे ऊपर खर्च है। तेरा खर्च जाने तू जाने, लेकिन तेरी बीवी के जेवरात की ज़कात 100% निकालनी होगी। हाँ, अलबत्ता तूने उस जेवरात को अपने कब्जे में कर लिया, खुद मालिक बन गया, यह और बात है, तो उस वक्त तेरे ऊपर कर्ज रहा। मिसाल के तौर पर बीवी से पूरे माल ले लिया, बीवी खुद दे डाली, जी तुम्हारा चाहिए माल, मैं कब तक इस्तेमाल कर लेती रहती हूं, ये माल के मालिक आप ही हैं। अब ये मसला चलेगा, मैं कर्ज है तो कर्ज को आकर अलग करके मजमूई तौर पर जितना माल है उस पर ज़कात अदा की जाएगी। नहीं, बीवी के पास माल रहा और बीवी उसकी मालिका रही, उसके कब्जे में है माल, तो बीवी ही अदा करना पड़ेगा, आपके कर्ज का उसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो ये मसला सुन लीजिए, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे भी निकालो बाहर, कितना है हिसाब लगाओ, और फिक्स्ड डिपॉजिट लोग करके रहते हैं, ये भी आकर हिसाब लगाओ। उसके साथ बॉन्ड, जो बॉन्ड रखकर बहुत सारी, जैसे शेयर मार्केट है, ये इसी तरह ये सारी चीजें, शेयर मार्केट में कितना पैसा लगा है, कितना पैसा आपका आज की कीमत के एतबार से उस पर कितना है, तो मैं खरीदे तो शेयर का हिसाब नहीं, आज के मार्केट की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से उसके अंदर जमा कर लीजिए। LIC के अंदर पैसा जमा कर रहे हैं, हराम है, लेकिन कितना पैसा जमा करें उससे भी आकर क्या है निकालना पड़ेगा। चिट फंड, ये भी हराम है, CF, लेकिन कितना पैसा जमा कर रहे हैं उससे भी आकर जमा करना पड़ेगा। बिजनेस कैपिटल, आपका तिजारत क्या हो रहा है, तिजारत के अंदर कितने, यानी साल के खत्म होने पर कितना आपको नफा आया हुआ है, कितना तुम्हारा माल जरूरत से ज्यादा बचा हुआ है, वो सारा माल, यानी सारा पैसा, सारा माल। रियल एस्टेट में काम करने वाले जैसे लैंड लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ये बाज लोग मुझे आकर ये सवाल करें कि हजरत, बाज लोग ऐसे हैं कि 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं बेचने के लिए, अब उसमें ज़कात बोले तो एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए लेते हैं 2-2 करोड़ होता है, तो 1 करोड़ को तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकालना पड़ेगा, 2 करोड़ का 5 लाख रुपए, उतना पैसा कैसा, फिर 2 करोड़ पर प्रॉफिट आपके वालिद साहब देते हैं क्या तभी? ये अल्लाह ताला की का देन है। जब 2.5 अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो फिर करोड़ों की, देखो इंसानों की नीयत देखो। बाज लोग आकर क्या है, फ्लैट का मसला कैसा है, फ्लैट खरीदते वक्त बिजनेस की अगर नीयत रही, तिजारत की नीयत रही, तो जब आप ज़कात निकालेंगे उसमें वो फ्लैट को भी शामिल करना पड़ेगा। हां, बिजनेस की नीयत नहीं रही, लैंड खरीद रहा है खुद जात के इस्तेमाल करने के लिए, भाई मैं बेचता नहीं, मैं अपने जात के लिए इस्तेमाल करने के लिए लग रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं है। बिजनेस के लिए लैंड खरीद रहा है तो बिजनेस जैसा होगा, तो जिस दिन आप ज़कात निकालेंगे उसका हिसाब जरूर लगवाना पड़ेगा आपको, तब उस दिन की वैल्यूएशन, उस दिन जितनी वैल्यूएशन होगी, तो मैं खरीदे हुए कि नहीं, जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं, चाहे सोने की ज़कात क्यों ना हो, चांदी की ज़कात क्यों ना हो, फ्लैट की ज़कात क्यों ना हो, दुकान के अंदर माल की ज़कात क्यों ना हो, आज के दिन ये दुकान बेच दिया तो कितना आएगा, कितना माल है हमारे पास,
اس کی आकर के आप बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसी तरह क्रेडिट्स, कर्ज, गिवन एक्सपेक्टेड अमाउंट, यानी आपका ये सब निकाल कर आपके ऊपर कर्ज कितना है, वो कर्ज को अलग करके मिसाल के तौर पर आपके पास मुकम्मल तौर पर 50 लाख का माल है और 50 लाख का सारा तिजारत का सब है, आपके ऊपर 10 लाख कर्ज है। मैं औरत की बात नहीं कर रहा हूं, जेवरात का अलग मसला है। आपके ऊपर 10 लाख कर्ज है तो 50 लाख का माल आपके पास है, तो 10 लाख कर्ज जो है ना, इसको बाजू कर दिया जाएगा, 40 लाख पर आप ज़कात निकालनी पड़ेगी। यह मसला है। इसी तरह बैंक के अंदर जो लॉकर्स हैं, लॉकर के अंदर जो पैसा रखे हुए हैं, उसे भी आकर क्या है, हिसाब करना पड़ेगा। हां, अलबत्ता जिसने सोने को रखकर लोन लिया है, लोन लेना हराम है, सूद है, तौबा कर ले सबसे पहले। लेकिन अगर किसी ने सोना रखकर लोन लिया है तो फिर उस सोना रखकर लोन लेने की वजह से सोने पर ज़कात नहीं होगी। बैंक में सोना रखकर लोन लिया है, लोन लेना हराम है, नाजायज है, और अगर जानबूझकर कर रहा है तो फिर ऐसी सूरत में सबसे पहले तौबा कर लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हां, बाहर सोना है तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। ज़कात 2.5%, 100 को 2.5%, लाख को 2.5% निकाल कर गरीबों में, देखो ज़कात अदा करने में भी अगर इस बात का ख्याल करें, औरतों को ज़कात ना दो। वजह इसकी यह है, उमूमी तौर पर औरतों के पास 1 तोला 1.5 तोला सोना कैसी भी हालत में रहता, सोच, चाहे बेवा रहने, चाहे कितनी भी गरीब रहने। हाँ, बाज औरतों को ताकीद कर लो, अगर नहीं है जेवरात, कुछ भी नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर गरीब से गरीब आदमी भी उसके पास कुछ ना कुछ जेवर होता है, तो इसलिए यानी ज़कात देने से पहले 100 बार ताकीद कर लें। मैं आम तौर पर एक मशवरा देता हूं, आप जितना भी ज़कात निकालेंगे, तीन चीजें कर लें, उसके अंदर 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में, रिश्तेदार बोले तो आपको पक्का मालूम रहता किसके पास जेवर है, किसके पास नहीं है। जो मुस्तहिक हैं, जो आकर जिनका नहीं चलता है, तो रिश्तेदारों में एक हिस्सा निकालकर उनको ज़कात पहुंचा दें। रिश्तेदारों को ज़कात देने से यानी डबल सवाब मिलता है, एक ज़कात का सवाब मिलता है, एक रिश्तेदारी का के साथ हक निभाने का सवाब मिलता है। तो एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए तय कर दे, और इसी तरह एक हिस्सा मदरसों के लिए जरूर उठाकर रखे। मेरे भाइयों, इसीलिए किताबों के अंदर आता है, जो माल किसी मदरसे पर लग जाता है, समझ लेना कि आपकी आखिरत बन गई। उस बच्चों पर माल लगता है, जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ते हैं, तो समझो कि आप नहीं पढ़े, लेकिन आपका पैसा उनके ऊपर लग रहा है, तो उसकी वजह से डबल सवाब आपको मिलेगा। ये बच्चे जितना कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जितने हदीस पाक पढ़ेंगे, जितने भी ये लोग अमल करेंगे ना, एक हिस्सा आपको भी आता रहेगा। दूसरा, उनके ऊपर ज़कात का माल खर्च करने से वो डबल सवाब इन पर भी मिलेगा। तीसरा हिस्सा अपने अड़ोस पड़ोस पर ख्याल करें, अड़ोस पड़ोस में कौन गरीब है। अब खाली ऐलान करें तुम्हें ज़कात देते तो लाइन लग जाती, वहां वैसा नहीं, जो चुन चुन कर तुम्हें दो, तुम्हें खुद ले जाकर पहुंचाओ। ऐलाना गिलाना करने से जेवरात रहती, उन्होंने भी आकर खड़ी आती, तुम्हारी ज़कात अदा नहीं होती। इसलिए आप अगर ज़कात निकाल कर ये जरूर ख्याल करें कि रमजान का महीना है, मदारिस वाले देखते होंगे आप, एक मदरसे वाले के ऊपर 50 लाख 60 लाख का खर्च, हमारे पूरी घराने का खर्च उतना नहीं रहता, लेकिन वो कैसा इंतजाम होता है, वो परवरदिगार करता है। जिसका पैसा मदरसों पर लग गया, जिसका पैसा हाफिज कुरान पर लग गया, आलिम दीन पर लग गया, तो उसकी वजह से जितना खैर फैलता रहता है, आपको भी उसमें हिस्सा शेयर होता रहेगा। तो इसका ख्याल करें। ये चंद बातें आपके सामने रही। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना है, जो लोग आकर क्या है ज़कात अदा करना चाह रहे हैं, अभी क्या तो इतना डाउट गिट रहे बोले तो जरूर मुझे आकर पूछ सकते हैं, और चाहे आप तालीम के मौके पर उठकर खड़े होकर भी सवाल कर सकते हैं, ऐसा कोई हिचकने की जरूरत नहीं। इसलिए कि दीन का मामला है, खोलकर आप जो भी डाउट आया आपको कभी भी, या व्हाट्सएप का नंबर मेरा रख लो, कभी भी हजरत मैं आपके सामने पूछ नहीं सका, एक क्लिप छोड़ डालो, एक ऑडियो रिकॉर्ड छोड़ डालो, ये मेरा मसला है, इसका जवाब चाहिए मुझे, और ये कभी भी आप करो, इंशाल्लाह जवाब देने के लिए मैं हाजिर रहूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये चंद बातें आपके सामने रही। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे इंशाल्लाह। ज़कात निकालेंगे खुश दिली से, अगर ज़कात खुश दिली से निकालेंगे तो अल्लाह की हिफाजत में भी आ जाएंगे, अल्लाह के नबी की दुआ में भी आ जाएंगे। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।